Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed first 4 questions of exercise 8.3, right? And in today's session we are going to discuss next further questions. Okay, so let's start it. So question number 5 is I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? Okay. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में ख़रीदा है और उसको 20% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया है। तो सेल करने पर मुझे कितनी मनी मिलेगी? ओके, सो हियर यू हैव गिवन CP, कॉस्ट प्राइस। बाई किया है, ख़रीदा है, तो कॉस्ट प्राइस आपको कितना दे रखा है? ₹10,000। ओके, इस टीवी का बाइंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है? 10,000। और आपको क्या दे रखा है? प्रॉफिट परसेंट कितना? 20। प्रॉफिट परसेंट यू हैव गिवन 20। सेलिंग प्राइस यू हैव टू फाइंड आउट हियर। ओके, मीन्स SP। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बेचने पर कितना मनी मिलेगा। ओके, नाउ सी यू हैव गिवन CP, प्रॉफिट परसेंट, बट यू हैव टू फाइंड आउट द SP. So there is direct formula to find out SP. What? SP is equals to CP into, in bracket, 1 plus profit percent upon 100. Okay, SP selling price is equal to cost price into, in bracket, 1 plus profit percent upon 100. ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे? जब आपको इन 3 वैल्यूज़ मीन्स SP, CP एंड प्रॉफिट परसेंट, यही वैल्यूज़ आपकी चेंज हो रही। तो इन 3 क्वांटिटी में से अगर आपके पास 2 क्वांटिटी हैं, सपोज CP है, प्रॉफिट परसेंट है, देन यू कैन फाइंड आउट SP. इफ़ यू हैव गिवन SP, प्रॉफिट परसेंट, देन you can find out from here CP. Okay, so as in this question you have given CP and profit percent and you have to find out SP. Okay, so see, SP is equals to CP is 10,000 into, in bracket, 1 plus profit percent is 20, so 20 upon 100. So 10,000 will be as it is in this step, 1 plus, now see, 20 upon 100 is a fraction. You can cancel this 100 by 20 5 times. So 21 is 20 and 25 is 100. Simplify it. On adding 1 plus 1 upon 5. 1 plus 1 upon 5. 1 is a whole and second one is a fraction. You are adding a whole number to this fraction. So what do we do in this case? We can write this one as 5 upon 5 because here in this place of 1 we want a fraction with denominator 5. So we can write this one as 5 upon 5. आप 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्वेश्चन मीन्स आंसर क्या मिलेगा? 1 ही। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5 upon 5. यहाँ पर हम 5 upon 5 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो दूसरा फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 5 है। Okay, so 5 upon 5 plus 1 upon 5. Now see, these two fractions are like fraction, so you can add it easily. So numerator parts will be added here. So 5 plus 1 and the denominator will be same 5. So 5 plus 1 is 6 upon 5. Okay, so 1 plus 1 upon 5 is what? 6 upon 5. Now see, this 5 is in denominator and 10,000 is numerator, and you know that 10 is the multiple of 5, so it will we cancel out by this 5. So 5 2s are 10, 5 2s are 10 and these 3 0 into this 6 means 6 2s are 12,000. So your SP selling price of the TV is ₹12,000. ओके, नाउ सी, यहाँ CP आपको क्या दे रखा था? 10,000. SP जो आपने कैलकुलेट किया दैट इज कमिंग आउट एज 12,000, दैट इज ग्रेटर देन, सो ऑब्वियसली क्या होगा? प्रॉफिट होगा।
20%. Now question number 6 is Juhi sells a washing machine for rupees 13,500. She loses 20% in the bargain. What was the price at which she bought it? Okay, so इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि जूही ने एक वॉशिंग मशीन को सेल किया है कितने रुपीज़ में, 13,500. इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस दे रखा है. ओके, और बार्गेन करते टाइम उसको क्या है 20% का लॉस हो गया है इस सेलिंग में. सो अब आपको क्या बताना है, मेन जो पार्ट है आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, किस प्राइस पर उसने ख़रीदा था वो इस वॉशिंग मशीन को कि उसे 20% का लॉस हो रहा है. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन मीन्स SP. हाउ मच, 13,500. Okay, this is the selling price of washing machine and this is the case of loss and loss percent you have given 20%. सेल करते टाइम जूही को वॉशिंग मशीन में लॉस हो रहा है, कितना, 20% का लॉस हो रहा है. और आपसे पूछा क्या गया है कि जूही ने इस वॉशिंग मशीन को कितने रुपीज़ में ख़रीदा था. दैट इज़ क्वेश्चन हियर. Okay, so here you have given SP and loss percent and you have to find out CP, cost price. Okay, so there is a direct formula to find out the CP. See, SP is equals to, in case of loss percent, when you have given loss percent, so SP is equals to CP into, in bracket, 1 minus loss percent upon 100. This is the direct formula to calculate SP or CP when you have given SP or CP and loss percent. In case of loss percent यहाँ पर माइनस आता है, in case of profit percent यहाँ पर प्लस का साइन आता है. ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं. SP इज इक्वल्स टू CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. जब आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा होगा, जब आपको लॉस परसेंट दे रखा हो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, SP इज इक्वल्स टू CP इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100. ओके, सो सी SP इज 13,500. SP क्या, इन तीनों में से आपको दो गिवन है, लॉस परसेंट दे रखा है, SP दे रखा है, CP फाइंड आउट कर सकते हैं. तो SP की जगह हमने वैल्यू क्या पुट की, 13,500 एंड CP यू हैव गिवन, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, CP आपको निकालना है तो CP को एज इट इज रखना है. 1 माइनस लॉस परसेंट 20, ओके, अपॉन 100. नाउ सी 20 अपॉन 100, सो इट विल बी 1 अपॉन 5. सो CP इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 5. 20 100 को 5 टाइम्स कट करेगा तो ये फ्रैक्शन किस में चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन 5 में. 13,500 आपका एज इट इज़ रहेगा. अब देखिए 1 माइनस 1 अपॉन 5, 1 माइनस 1 अपॉन 5, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि लास्ट क्वेश्चन हमने किया. सो 1 यहाँ डिनोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन का क्या है, 5. तो यहाँ 1 की जगह हमें ऐसा ही फ्रैक्शन लिखना है जिसका डिनोमिनेटर 5. सो 1 तभी पॉसिबल है जब ये 5 अपॉन 5 होगा. यहाँ पर फ्रैक्शन क्या होगा, 5 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5. दोनों ही लाइक फ्रैक्शंस है तो इनका डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा 5. ठीक है, एंड न्यूमरेटर पार्ट्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. सो 5 माइनस 1 दैट इज 4 अपॉन 5. सो 1 माइनस 1 अपॉन 5 विल बी 4 अपॉन 5. सो CP इंटू 4 अपॉन 5 एंड दिस साइड 13,500 as it is. Okay, since we have to find out CP, so we will transpose this part, this fraction. So see 13,500 इंटू, यहाँ पर 5 क्या है, डिनोमिनेटर में, डिवीज़न में. अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो डिवीज़न का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन इस 4 को. देखिए 4 किस में है, मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में. जब आप इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये किस में, डिवीज़न में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में. ओके, अब यहाँ आपका क्या बचा है, ओनली CP, जो कि हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए
अगर यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं तो Cp आपका क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, ओके, 4 3 जा 12, 1 will be remainder, so 1 5 means again 4 3 जा 12, 15 minus 12 is 3, so 3 0, so 4 7 जा 28, then 2 will be remainder, so 4 5 जा 20, means 3375 times of 4 is 13,500 into this 5. So 5 5s are 25, 2 carry, 5 7s are 35 plus 2 37, 3 carry, 5 3s are 15 plus 3 18, 1 carry, 5 3s are 15 plus 1 16, means our cost price of washing machine is coming out as 16,875. ओके, तो यहाँ पर देखिए Cp इज मोर देन Sp, दैट इज वाई इन दिस केस लॉस। ओके, यहाँ Cp क्या निकल कर आ रहा है, ज़्यादा निकल कर आ रहा है Sp से, तभी तो लॉस होगा व्हेन Cp इज मोर देन Sp. ओके, सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट Cp और Sp व्हेन यू हैव गिवन Sp और Cp loss percent or profit percent, okay, by using these two formula. Now next question number 7 is the first part you have given, chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk. okay, तो यहाँ पर chalk 3 component से मिलकर बना है, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और इन तीनों ही एलिमेंट्स का आपको क्या रेशियो दे रखा है कि किस रेशियो में वो चॉक में प्रेजेंट होते हैं। 10:3:12 मीन्स 10 पार्ट्स आपका कैल्शियम होगा चॉक में, 3 पार्ट्स कार्बन होगा एंड 12 पार्ट्स ऑक्सीजन होगा। अब आपको ये बताना है कि चॉक में कार्बन का कितना परसेंटेज है। ओके, सो सी द फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले रेशियो क्या दे रखा है आपको, कैल्शियम इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन। टेन इज टू 3 इज टू 12। ओके, चॉक में कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो आपको 10:3:12 दे रखा है। ओके, तो आपको क्या बताना है कि कार्बन का चॉक में कितना परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कार्बन का कितना फ्रैक्शन, कितना पार्ट इस चॉक में प्रेजेंट है। ओके, और चॉक में कितना पार्ट प्रेजेंट है उसके लिए हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। यहाँ क्योंकि पार्ट से दे रखे हैं, रेशियो में दे रखा है, पार्ट से दे रखे हैं, सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना हो जाएगा, 10 + 3 + 12 मीन्स 10 + 3 13, 13 + 12 is 25. Okay, now out of these 25 parts, 3 parts is carbon. Now we can frame fraction of carbon. Okay, so percentage of carbon in chalk will be fraction 3/25. Since we have to find out the percentage, so we will multiply this fraction by 100. ओके, 3/25 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन वो क्या है, रेशियो में दे रखी है, पार्ट्स में दे रखी है। अब आपसे ये पूछा गया है कि कार्बन का परसेंटेज क्या होगा चॉक में। परसेंटेज निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि चॉक के कितने पार्ट्स, कैल्शियम में कितना पार्ट, कार्बन में कितना पार्ट, ऑक्सीजन है, तो टोटल पार्ट्स क्या होगा। तो टोटल पार्ट्स 25 है, जिसमें से 10 पार्ट्स कैल्शियम है, 3 पार्ट्स कार्बन है एंड 12 पार्ट्स ऑक्सीजन है। टोटल पता है और कार्बन का पार्ट्स भी पता है, तो हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं।
So 3 upon total number of parts means 25 into 100%. Okay. So see, 3 upon 25 into 100%. 25 1 ja 25 and 25 4 ja 100. It means 3 into 4. That is 12%. ओके तो यहाँ पर चौक का जो गिवन रेशियो है उसके अकॉर्डिंग 12% कार्बन का है. ठीक है, 12% पार्ट कार्बन का है चौक में. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज इफ इन अ स्टिक ऑफ चौक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चौक स्टिक. अब आपको सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है कि अगर किसी स्टिक चौक स्टिक में कार्बन 3 ग्राम प्रेजेंट है तो चौक स्टिक का वेट क्या होगा. ओके, यहाँ कार्बन का आपको वेट दे रखा है 3 ग्राम और टोटल वेट चौक का आपसे पूछा जा रहा है. तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड किया है, कार्बन कितना परसेंट प्रेजेंट है, 12%. तो इस परसेंट की हेल्प से हम चौक स्टिक का वेट भी निकाल सकते हैं. तो देखिए क्या है, 12% ऑफ चौक स्टिक का 12% क्या है, कार्बन है. क्वांटिटी ऑफ कार्बन, चौक स्टिक में कार्बन कितना 12% प्रेजेंट है, इसीलिए 12% ऑफ चौक स्टिक का जितना वेट है उसका 12% क्या है, कार्बन की क्वांटिटी है. ठीक है, तो देखिए अब चौक स्टिक का वेट तो हमें पता नहीं है तो हम इसको लेट कर ले रहे हैं कि लेट वेट ऑफ चौक स्टिक बी x ग्राम. ओके, हमने लेट कर लिया कि चौक स्टिक का वेट क्या है, x ग्राम है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है. अब x का 12% मीन्स 12% ऑफ x इज 3 ग्राम. यहाँ आपको कार्बन का वेट दे रखा है और कार्बन का परसेंटेज भी दे रखा है. ठीक है, तो चौक स्टिक का जो 12% पार्ट क्या है वो कार्बन कवर कर रहा है, दैट इज 3 ग्राम. ओके, सो 12% मीन्स 12 upon 100 ऑफ इज हियर ऑपरेटर, सो मल्टीप्लीकेशन into x is equals to 3. Okay, if you find out x and transpose this part 12 and 100, so that means 3 into 100 upon 12. 100 क्या है, डिनोमिनेटर में इस साइड राइट हैंड साइड ले जाओगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसी तरीके से 12 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में, राइट हैंड साइड में लाओगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 and 4 1 जा 4, 4 25 जा 100 means 25 gram. Okay, that means weight of the chalk stick is 25 gram. ओके, अब इस 25 ग्राम का अगर आप 12% निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 ग्राम आएगा. ओके, देखिए टोटल क्या वेट 25 ग्राम है एंड 12% ऑफ 25 ग्राम कितना होगा, 12 upon 100 इंटू 25. सो 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100 एंड 12 upon 4 इज 3. तो कार्बन का वेट क्या हो जाएगा इस चौक स्टिक में, 3 ग्राम. Now question number 8 is Amina buys a book for rupees 275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अमीना ने एक बुक खरीदी है 275 रुपीज़ में और उसको 15% लॉस पर सेल कर दिया है. तो उसने कितने रुपीज़ में सेल किया ये आपको बताना है. मीन्स यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस बताना है. कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक you have given 275 rupees and loss percent you have given 15%. So as we have discussed in previous question, the direct formula to find out the CP or SP in case of if you have given loss percent or profit percent. Okay, so we know that SP
is equals to CP into in bracket 1 minus loss percent upon 100. Okay, SP is equals to CP into 1 minus loss percent upon 100. So you have to find out SP. Now put the values. CP you have given 275 into 1 minus loss percent you have given 15 upon 100. Okay, so 275 into 15 upon 100. Both are the multiple of 5, so these are divisible by 5. So 5 3s are 15 and 5 20s are 100, means 3 upon 20. Okay, so 1 minus, in place of 15 upon 100 we can write 3 upon 20. Okay, so 275 into, now see, 1 minus 3 upon 20. 1 minus 3 upon 20. You are subtracting a fraction 3 upon 20 from a whole. So in place of 1, we can write a fraction with denominator 20. Means if we write 20 upon 20 in place of 1, 20 upon 20 minus 3 upon 20. Now these are like fractions, so we can subtract easily. Denominator will be 20 as it is and numerator part will be subtracted. So 20 minus 3 means 20 minus 3 is 17 upon 20. Okay, so 1 minus 3 upon 20 is 17 upon 20. Okay, now see here at this unit place there is 5 and here is 0. So these two can we cancel out by 5. So see 5 5s are 25. Okay, 2 will be remainder. If we carry 5, so 5 5s are 25, means 55 times into 17 as it is, and 5 4s are 20. Okay, so if we multiply 17 to this 55, so 17 5s are 85, 8 carry, 17 5s are 85, 85 plus 8 means 93. Okay, upon 4. If we divide this, 4 2s are 8, 1 carry, 4 3s are 12, 1 carry, 4 3s are 12, 4 7s are 28, means 233.7 something. So selling price of book will be rupees 233.7. Okay, so by using this direct formula we can calculate SP when we have given CP and loss percent. Okay, now question number 9 is find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. In first part you have given principal rupees 1200 at 12% per annum rate of interest, and in second part you have given principal rupees 7500 at 5% per annum rate of interest. Okay, तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्या 3 इयर्स के बाद आफ्टर 3 इयर्स कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा जब आपको प्रिंसिपल अमाउंट क्या दे रखा है 1200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है दैट इज 12% पर एनम. ओके, एंड इन सेकेंड केस यू हैव गिवन प्रिंसिपल रुपीज 7500 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%. ओके, तो देखिए टाइम दोनों ही केस के लिए आपको सेम दे रखा है 3 इयर्स. आफ्टर 3 इयर्स यू हैव टू पे वट एवर द अमाउंट इन बोथ केस यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, दोनों ही केस में 3 साल के बाद जो भी अमाउंट पे करना है उसको आपको कैलकुलेट करना है. तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल फर्स्ट केस में प्रिंसिपल आपको 1200 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम दे रखा है, टाइम पीरियड दोनों ही केस के लिए सेम है. तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला
क्या है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100. This is the direct formula to calculate the simple interest on given amount of money. Okay, so the amount at which you have to calculate the interest, that is the principal here. You have given 1200 into the rate at which the interest is to be calculated, that is 12 into time. At the end of 3 years you have to pay the amount. Okay, that is 3 upon 100. Okay, so these two 0 will be cancelled out by these two 0, and 12 12 ja 144 into 3 means 3 4 ja 12, 1 carry, and 3 4 ja 12 plus 1 13, 1 carry, 3 1 ja 3 plus 1 4, means interest is 432 rupees. Okay, on this principle the interest at this rate is 432, but you have to tell here the amount to be paid. कितना अमाउंट 3 इयर्स के बाद पे करना है. ठीक है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट लगेगा 3 साल में इस प्रिंसिपल पर. ओके, अमाउंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. Okay, principal plus interest. So principal you have given 1200 plus interest you have calculated 432 rupees. Okay, so 32 and 12 plus 4 is 16. So 1632 rupees to be paid at the end of 3 years, when the principal is 1200 and interest is calculated as 12% per annum rate of interest. ओके, कितना आ गया अमाउंट, 1632 रुपीज़. अब इस केस में देखिए, यहाँ प्रिंसिपल आपको 7500 दे रखा है. सो अगेन द सेम फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, P इंटू R इंटू T अपॉन 100. ओके, प्रिंसिपल इज 7500, rate of interest is 5 into time. Time is 3 years. After 3 years you have to pay the amount that is to be calculated upon 100. So these two 0 will be cancelled out with these 2 0. So 75 and 5 3s are 15. Okay, so 15 5s are 75, 7 carry, 15 7s are 107, 15 7s are 105. So 105 plus 7 means 112. Okay, so this is the interest on this principle. Now we have to calculate the amount that is to be paid. So amount is principal plus interest. Principal is 7500 and interest we have calculated 1125. Okay, so 25 and 5 plus 1 is 6, 7 plus 1 is 8. So rupees 8625 is to be paid at the end of 3 years, when the principal you have given 7500 and rate of interest 5%. Now question number 10 is, what rate gives rupees 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि यहाँ पर आपको सम दे रखा है, मीन्स बॉरोड मनी मीन्स प्रिंसिपल 56,000. अब इस सम पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 280 रुपीज़ का. ओके, और 2 इयर्स में मिल रहा है. लेकिन आपसे पूछा यहाँ पर क्या है कि किस रेट पर मिल रहा है, किस रेट पर 56,000 रुपीज़ पर 280 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है इन 2 इयर्स. ओके, 2 साल में 56,000 पर इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में कितना 280 रुपीज़ मिल रहा है. लेकिन इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये जो 280 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है वो किस रेट पर मिल रहा है, यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. ओके, सो व्हाट यू हैव गिवन, राइट फर्स्ट you have given interest, simple interest, that is 250, and the sum means principal you have given rupees
56,000. Okay, and time period, time you have given 2 years. Okay, sorry, here interest is 280. इस प्रिंसिपल पर इतना इंटरेस्ट मिल रहा है 2 ईयर्स में. अब हमें पता होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 56,000 का 280 रुपीज़ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है. तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पर सेम ही रहना है. I इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100. अब देखिए यहाँ पर 4 क्वांटिटी हैं जो कि चेंज हो रही हैं, उनमें से 3 आपको दे रखी है, 4th आपको कैलकुलेट करनी है. देखिए ये इंटरेस्ट आपको दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है. आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. तो वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. इंटरेस्ट आपका 280 है, प्रिंसिपल आपका 56,000 है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, उसको एज इट इज़ रखना है. टाइम आपका हो गया 2 ईयर्स अपॉन 100. ओके, सो दीज 2 0 विल बी कैंसल आउट विद दीज 2 0 एंड रिमेनिंग इज 560 इंटू आर इंटू 2 एंड दिस साइड 280. ओके, कैलकुलेट हमें आर करना है, तो ये दोनों को इस साइड ट्रांसपोज करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में. सो सी 280 अपॉन ये 2 और 560 मल्टीप्लीकेशन में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब ट्रांसपोज होंगे तो डिवीज़न में पहुंच जाएंगे. मीन्स 2 इंटू 560. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो सी दिस 0 विल बी कैंसल आउट विद दिस 0 एंड 28 1 जा 28 and 28 2 जा 56. Okay, that means rate of interest will be 1 upon 2 into t 2, that is 1 upon 4%, or we can write it as 0.25%. ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, क्या है? 0.25%. ओके, तो इस तरीके से आपको इन 4 क्वांटिटी में से अगर कोई भी 3 क्वांटिटी दे रखी हो तो आप 4th क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम, व्हाट इज़ द सम. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि मीना कितना इंटरेस्ट दे रही है? 45 रुपीज़. और कितने साल के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए? 1 ईयर के लिए. ठीक है, और कितने परसेंट रेट पर? 9% रेट पर. ठीक है, यहाँ आपको सम नहीं पता है कि कितने सम पर या कितने प्रिंसिपल पर आप इंटरेस्ट निकालना है 45. ओके, अब आपको यहाँ निकालना क्या है? व्हाट इज़ द सम शी हैज़ बोरोड. तो उसने कितना मनी बोरो किया है, कितना सम बोरो किया है. मीन्स प्रिंसिपल you have to tell here. So principal you have to tell. Interest you are given ₹45. Okay, time period you have given 1 year. Okay, and rate of interest you have given 9% per annum. Okay, per annum का मतलब annually. Okay, so as we know the formula of calculating interest, P into R into t upon 100. Okay, interest is 45, principal you have to calculate, rate of interest you have given 9, time period you have given 1 upon 100. Okay, so it will be principal into 9 upon 100 is equals to 45. So principal will be 45. If you transpose this 100 to left hand side, so it will be multiply upon, if you transpose this 9, that is multiplying in right hand side, so it will be divide by, it will be divided in left hand side. So 9. So 9 1 ja 9 and 9 5 ja 45. So it will be 5 into 100 means 500. So principal at which she has interest 45 rupees is 500. Okay, 500 मीरा ने 500 रुपीज़ बोरो किया है जिस पर इंटरेस्ट 45 रुपीज़ हो रहा है
1 ईयर के लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. ओके, so that's all about today's session, in which we have discussed question number 5 to question number 11 of exercise 8.3. right? If you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss the next chapter, rational numbers. Till then, keep watching my channel. Thank you.